Gracious and Heavenly Father, in the name of your Son Yeshua, Father, we come before you in this moment. And I'm so overjoyed to have our dear sister Dimple with us, who's willing to translate your word to people who will be receiving this teaching, Lord. I want to thank you for her life. I want to thank you for commitment. I see there is a tremendous amount of hunger and thirst inside of her for you. Lord, there are many gaps in her life that need to be filled, Father. And I see, Father, that it was your design, Lord, to bring her here, because by her doing this work for you, the gaps in her life are going to be filled, Father. The questions that are in her life are going to be filled. The confusions that are in her life are going to be filled, Father. You're showing me in my spirit, Lord, that she is going to be a wonderful child to you. A wonderful child to you. So I just want to put her into your precious hands, Lord Jesus. You bless her. You anoint her right now. Put your hand upon her. And you free her mind and free her tongue and her mouth and her lips to speak. Speak your word, Lord. Lord, I want to thank you for this opportunity, Lord. Lord, this anointing of these sessions also that we're going to do every day, Lord. I pray that it reaches out to people. So this wonderful time that you have chosen, Lord, put it into your precious hands, Lord Jesus. You be with us and you guide us in all truth. Amen. Amen. Okay, friends. So in continuing our Hindi teachings for the week, last time we had read about the first, about chapters 5, 6, and 7 of the book of Matthew. Right. Okay. So हमने जो है वो अभी आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे हम 5, 6 और 7वीं किताब जो है वो हम मत्ती की देख रहे थे. So 5, 6, and 7 of Matthew is typically called the Sermon on the Mount, which Jesus is talking to the people, the Jewish people of Israel. और 5, 6 और 7 किताब मत्ती की हम देखते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह जो है वो यहूदी लोगों से जो है वो बातचीत पर्वत पे जो है लोगों से बातचीत कर रहे, यहूदी लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे. But I want to draw your attention to 1 or 2 verses in chapter 5, and we're going to look deeply into its understanding. और हम आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहते हैं 1 या 2 अध्याय के ऊपर, और हम चाहते हैं कि ये जो है वो पूरी तरह से जो है वो आपके जो है वो समझ के अंदर, आपके मन के अंदर वो बात उतरे. Now remember last time we studied about the 2 mountains. The Mount Sinai, where God the Father was giving the Torah to the Jewish nation. And here in the New Testament, we're talking about the mountain that Jesus is giving the same Torah to the Jewish people. और हमने जो है गए बार जो है वो 2 पर्वत के बारे में हमने सीखा था. एक पर्वत जो पुराने करार में है, जहाँ पे जो परमेश्वर जो है वो तोरा का जो पर्वत है वो वहाँ पे परमेश्वर ने बात की, और वहाँ पे अगर हम नए करार में देखते हैं तो वहीं पे जहाँ पे यीशु मसीह ने भी जो है वो यहूदी लोगों से तोरा पर्वत पे जो है वो बात की है. So it's about 2 mountains, the same God giving the same message, but only thing different time eras. और ये 2 पर्वत की वो बात हो रही है कि वही परमेश्वर जो है वो दोनों पर्वत पे जो एक ही परमेश्वर जो है वो अपनी बात बता रहा है, पर जो समय है वो अलग-अलग समय है. Okay, if you have your Bibles, please turn with me to chapter 5, verse 1. और आप अपने पवित्र शास्त्र की मत्ती के 5वां अध्याय का पहला वचन जो है आप खोल सकते हो. And let's read verse 1. I'll read it from the Hebrew. Dimple, if you can, if you want to read in Hindi, please read in Hindi. I'll do that. So it says in verse 1, I'll read from the English and then the Hebrew. Okay, it says,
Vayehi kiraot et hamon ha'am vayal hahara vayeshev sham vayinasu elav talmidav. It says, and seeing the multitudes, seeing the people, he went up to a mountain, and when he was set, the disciples came up to him. और मत्ती का 5वां अध्याय पहला वचन कहता है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए. Now, उसके पास आया, what do you mean by उसके पास आया? All everything means something very interesting in Hebrew. तो जैसे हम देखते हैं कि उसके पास आए, जैसे हिंदी में शब्द वचन कहता है और चेले उसके पास आए, तो पास आए मतलब वो हिब्रानी में जो है इसका एक अर्थ है, इसका एक मतलब है. Okay, remember he went up a mountain and his disciples came up to him. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है यीशु जो है वो पहाड़ पे गया और चेले जो है उसके पीछे पहाड़ पे गए. So this word to go up is a very specific word in the Hebrew, and it has a very specific meaning. और ये जो ऊपर जाना जो शब्द है वो एक मायने रखता है हिब्रानी शब्दों में और हिब्रानी भाषा में, और उसका एक स्पेसिफिक उसका एक जो है वो एक खास जो है वो एक ये शब्द है ऊपर जाना. The word is Allah, from where we get the word aliyah, where you go up. That means you lift your soul and you go up. और इसका मतलब हम देखते हैं कि आप जो है अपने प्राण को लेके जो है वो आप ऊपर जा रहे हो. Now in our life, we experience this aliyah whenever we are in prayer and worship, because our spirits are lifted up, our hearts are lifted up, and we lift them up into the presence of God. और ये तब होता है जब हम जो है जब परमेश्वर से परमेश्वर के आगे जाते हैं, जब हम जो है परमेश्वर की जब स्तुति आराधना करते हैं, तब हमारी जो आत्मा है, हमारा जो हृदय है, वो हम परमेश्वर के आगे ऊंचा लेकर जाते हैं. So this ascending that happens in you spiritually is a very, very important thing. That means you are ascending to the presence of God in your prayer and worship. और ये जब ऊपर जाने वाली बात होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आराधना में तुम जो है तुम अपने आप को जो है वो ऊपर ऊंचा उठा रहे हो, परमेश्वर की तरफ आप ऊंचे उठ रहे हो. Just like in the Old Testament we read that God descended on Mount Sinai and Moses went up to meet God, here Jesus has gone up the mountain and his disciples are going up to meet up with him. और जैसे हमने पुराने करार में देखा कि परमेश्वर जो है वो ऊपर से नीचे उतरा, माउंट सनाई पे जो है वो परमेश्वर नीचे उतरा और मूसा जो है वो ऊपर चढ़ा, और वैसे नए करार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो उस पहाड़ पे गया और फिर चेले ऊपर चढ़े. So the Bible is trying to tell us that there is something spiritually happening to the disciples, that they are able to ascend the mountain and meet with Jesus over there, because remember, Jesus is already on the mountain and his disciples have followed him. So there is a spiritual uplifting which is happening to them. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चेलों के अंदर जो है वो एक आत्मिक रूप में जो है वो अंदर से जो है आत्मिक रूप में वो लोग का जो प्राण है, जो हृदय है, वो ऊंचा उठ रहा था. और इससे हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह जब पहाड़ पे गया, तब चेले भी जो है उनके पीछे जो है ऊपर पहाड़ पे गए, तो कुछ अलौकिक रूप में, आत्मिक रूप में उसके उनके जो हृदय में जो प्राण जो है वो आत्मिक रूप में अंदर जो है वो लोग उठ रहे थे. Now, for you to understand this going up a little more, I want you all to turn to the book of Psalms, verse 24, chapter 24 of Psalms. Can you please turn with me to the book of Psalms? और ये बात को और हम गहराई से समझने के लिए हम भजन संगीता की बुक खोलेंगे, जिसमें 24वां अध्याय देखते हैं. And we will read verse 3 of that. Can you read verse? Can you read the verse 3 in Hindi?
यस, तो हम भजन संहिता का 24वां अध्याय 3रा वचन देखते हैं। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ी है। प्रता, प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा No, घने मेघों के ऊपर रहता है। Psalm 24, verse 3. भजन संहिता 24वां अध्याय 3रा वचन। सो सॉरी, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? So the Bible is indicating to us that who is able to go up to the mountain of the Lord and be in the Lord's presence, who has the merit of doing this. और यहाँ पे जो है वो पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि कौन जो है वो यहोवा के पर्वत पे जो है वो चढ़ सकता है या खड़ा हो सकता है। It's very important. Now, the disciples have been sanctified by our Lord Jesus to ascend this spiritual mountain and to come and stand in his presence. और यहाँ पे हम देखते हैं कि चेले की जो है वो शुद्धिकरण हुई थी चेलों के ऊपर, इसलिए वो लोग जो है वो आत्मिक रूप में जो है उनका जो हृदय या प्राण या उनका जो मन है वो उठाया गया था और वो लोग जो है वो पहाड़ पे ऊपर गए। Okay. Now, I want you to understand that Jesus is talking to the Jewish people. He's not talking to the nations. He's talking to the Jewish people. और यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप समझे कि यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो पूरे वो सिर्फ यहूदियों से बात कर रहे थे, वो पूरे जो है वो संसार से बात नहीं कर रहे थे। So that means he's treating the Jewish people with a certain spiritual respect that they're supposed to be having. और इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यहूदियों को एक खास प्रकार का जो है वो सम्मान दे रहे थे, एक औहदा दे रहे थे। यीशु मसीह यहूदियों को एक अलग प्रकार का जो है वो सम्मान का औहदा दे रहे थे। Because in comparison to the other nations of the world, the Jewish people were supposed to be in a deep relationship with the only true God. क्योंकि अगर हम देखते हैं कि संसार के दूसरे लोगों के तुलना में ये लोगों का जो स्थान है वो परमेश्वर के लिए एक अलग स्थान है। वो दूसरे लोगों से इनकी तुलना अलग यीशु मसीह ने की है। Wonderful. Praise God. Then in verse 3 of Matthew 5, he says, then Jesus opened his mouth and spoke these words. और हम देखते हैं मत्ती का 5वां अध्याय 3रा वचन। यहाँ पे यीशु मसीह ने जो है वो अपना मुंह खोला और इन शब्दों को कहा। He said, blessed or happy are the ones, the word which is used, happy are the ones who are poor in spirit. यहाँ पे वचन कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So what do you mean by poor in spirit? और इसका मतलब क्या है कि मन के जब दीन बोला गया, मन के दीन का मतलब क्या है? It means that a person whose spiritual condition is not full of pride and who has not lifted himself up within himself. इसका मतलब ये है कि मन का दीन होने का मतलब उस मनुष्य के जो मन में जो है वो कोई भी प्रकार का जो है वो घमंड से भरा हुआ मन नहीं है, बल्कि उसका मन जो है वो दीन मन है, जो उसने सिर्फ अपने खुद को उठा गया है, जिसमें वो घमंडी नहीं है। A person who has emptied himself of all pride and ego and who searches for God and who rises to the mountain of God to find God to fill himself. ये मन के दीन वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप का मन जो है वो घमंड और दूसरी बातों से जो है वो खाली किया है और परमेश्वर की बातों से जो है उसने अपने मन को भरा है, जहाँ पे वो परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर के उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पे वो परमेश्वर की बातों से भरा है। If you climb your own mountain, you are climbing your own mountain of sin and of pride. But if you climb the mountain of God, you have to be empty and full of humility
and full of emptiness for God to fill you. और जब हम हमारा खुद का पहाड़ चढ़ते हैं तो वो पहाड़ जो है वो हमारे घमंड का, हमारे गर्व का, दूसरी सारी बातों का जो है, हम घमंड का एक पहाड़ चढ़ते हैं। पर जब हम परमेश्वर का पहाड़ चढ़ते हैं तब परमेश्वर के पहाड़ में हमारे अंदर नम्रता होती है। हम जो है हमारे हृदय को जो है वो पूरी तरह से हम खाली रखते हैं ताकि हम परमेश्वर की बातों से भर सके। The mountain of the Lord is a very unique place compared to all the mountains of this world. परमेश्वर का जो पहाड़ है वो पूरी तरह से जो है वो अलग प्रकार का पहाड़ है। दूसरे सारे पहाड़ों की, जो इस संसार में जो दूसरे सारे पहाड़ है उनकी तुलना से जो परमेश्वर का जो पहाड़ है वो सबसे अलग है। If there is no humility, if there is no kindness, if there's no holiness, if there's no sanctity, you will not even be able to approach the mountain of the Lord. Forget climbing it. और अगर हमारे अंदर जो है नम्रता नहीं है, हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है, अगर हमारे अंदर जो है वो दीनता नहीं है, तो ये भूल जाओ कि हम पहाड़ पे पहुंच पाएंगे। हम जो है वो पहाड़ चढ़ भी नहीं पाएंगे। So if you are empty and if you are poor in spirit with humility, you are able to ascend this mountain that is in the kingdom of heaven, and you will be a part of the kingdom of heaven, ascending this mountain of the Lord in the spiritual realm. तो अगर पूरी तरह से खाली है और अगर हम मन के दिन है तो ही जो है हम इस पहाड़ को जो है वो हम चढ़ पाएंगे। वो परमेश्वर को जो है हम हमारे अंदर ले पाएंगे और परमेश्वर के जो राज्य है उस राज्य को हम पा सकेंगे। So we are comparing Psalms 24 to what our Lord Jesus is saying in Matthew 5, that who may ascend the mountain of the Lord. We now know Jesus is giving us the answer. और अगर हम देखते हैं, जैसे हमने अभी भजन संगीता में पढ़ा, अगर उसी वचन के जैसे हम यहाँ पे अगर मत्ती के अध्याय में देखते हैं कि जहाँ पे यीशु ने कहा कि यहाँ पे जो है वो जवाब दिया है कि कौन जो है वो इस पहाड़ को चढ़ सकता है। So in verse 4 of Psalms 24, can you read that in Hindi? Yes. हम भजन संगीता का चौथा अध्याय 24 सॉरी पास्टर, इट्स Psalms 4 24 verse 4. ओके। हम भजन संगीता का 24वां अध्याय चौथा वचन पढ़ते हैं। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। This is the person who is going to be able to ascend the mountain of the Lord. ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की पहाड़ के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर सकता है। So a clean hands means a hands that have not involved itself with sin or transgression against another human being. और ये वो व्यक्ति है, ये वो शुद्ध हाथों की बात हो रही है जिन हाथों ने जो है वो कभी भी कोई पाप नहीं किया है या किसी मनुष्य के जो है वो विरुद्ध नहीं गया या किसी प्रकार का जो है वो उससे पाप नहीं हुआ है। वो शुद्ध हाथों की बात हो रही है। We should always keep our hands clean in what we're doing in life. हमें जो है हमेशा अपने हाथ जो है वो शुद्ध रखने हैं। जो भी हम हमारे जीवन में कर रहे हैं, हमें हमारे हाथों को शुद्ध रखना है। These hands can either bless or they can harm or transgress in sin. या तो ये हाथ जो है वो किसी को आशीष कर सकता है, या तो ये हाथ जो है वो पाप में या किसी पाप में डूबा हुआ रह सकता है। These hands can be used to love somebody or it can be used to murder a life. ये हाथ जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं किसी को प्रेम करने के लिए, या यही हाथ जो है वो किसी की जिंदगी को छीनने के लिए, किसी की मृत्यु के लिए ये हाथों का इस्तेमाल हो सकता है। There are 4 things that a human being functions with in his daily life.
और 4 चीजें जो मनुष्य के जीवन में रोजाना ही जो है वो कार्य करती है। One is your heart, the second पह- is your, the third is your mouth, and the fourth is your hands. okay. Sorry, I just skipped the second one. Yeah, the first is your heart, Okay, the second is your mind, okay, third is your mouth, and okay. fourth is your hands. 4 बात जो है वो मनुष्य के जीवन में रोज ही जो है वो कार्य करती है। पहली बात जो है वो मनुष्य का जो है वो हृदय, दूसरी बात जो है वो उसका जो मन, उसकी जो सोच, जो माइंड रहता है, जो सोच, तीसरी बात जो है वो उसकी जबान, और चौथा जो है वो उसके हाथ। The mind, if the heart is pure and clean, then your mind is processing a pure language. अगर आपका हृदय जो है वो शुद्ध है, वो पूरी तरह से साफ है, तो आपका दिमाग जो है वो वैसे ही कार्य करेगा और वही बातों का उपचार तुम्हारे मुंह से निकालोगे। And then the mouth will speak pure words. और फिर जो तुम्हारे जो मुंह है वो शुद्ध शब्दों को जो है वो निकालेगा। And your hands will do pure and clean things according to the purity of your heart. और तुम्हारे हाथ भी फिर वही शुद्ध काम करेंगे कि जो तुम्हारे मन में जो शुद्धता है, जो सच्चाई तुम्हारे मन में हृदय में है, वैसे ही फिर तुम्हारे हाथ भी कार्य करेंगे। So there is a certain connection between the heart, the mind, the mouth, and the hands of a human being. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रकार का जो है ये चारों चीजें मनुष्य के अंदर जो है वो जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ कार्य में वो लाती है। हम देखते हैं हृदय से जो है वो एक हमारा दूसरा जो है वो हमारा दिमाग, तीसरी जो है वो हमारा मुंह, और चौथा जो है वो हमारे हाथ। If you want to have clean hands, pursue having a pure heart. अगर हमें चाहिए कि हमारे हाथ जो है वो शुद्ध रहे, सच्चाई के कार्य करे, तो हमारा जो हृदय है वो पहले शुद्ध होना चाहिए। Okay. And then it says, for the person who has not spoken a false oath by my life, or has sworn deceitfully. That means now we're also talking about speaking, doing with the hands, and having a pure heart. All three things are mentioned in this verse. और जैसे यहाँ पे वचन कहता है, व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाए और न कपट की शपथ खाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो है वो एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई है। अपने हृदय, अपने दिमाग से, अपने मुंह से ये सारी बातें जो है वो जुड़ी हुई है। So the purity that's in the heart must flow from the heart to the brains, from the brains to the mouth, and from the mouth to the hands. It's a flow, it's a constant functionality of a human being. और जो शुद्धता हमारे हृदय में है, वो जो है वो हृदय से होकर जो है वो कार्य करती है, हमारे दिमाग पे जो है वो बहती है। जो हमारे हृदय की सोच है वो हमारे दिमाग में बहती है, दिमाग से वो बहती है हमारे शब्दों में, हमारे मुंह पर, और वो वहां से बहती है हमारे हाथों में। तो ये रोजाना जो है वो एक कार्य में लेती है, रोजाना जो है इसमें जो है वो कार्य होते हैं, और ये चारों चीजें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। This is the level of how we need to walk our life as a spiritual Christian, because this process of heart, mind, mouth, and hands is the functionality of the image of God. और ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पे जो है वो हमारे अंदर जो है वो कार्य होता है। जैसे हमने देखा कि हृदय से जो सोच निकलती है वो दिमाग में जाती है, दिमाग से जो बातें हैं जो मुंह पे आती है, मुंह से जो है वो हाथों में कार्य होता है। ये सारी चीजें जो कार्य में लाती है, जो ये सारी चीजें जो कार्य करती है, वो एक परमेश्वर की जो है वो एक एक आकृति जो है वो परमेश्वर की बनाती है।
Now, each of these four stages has a particular garment that's given to a human being, and it covers a human being in whenever a human being uses either one of these four uh, functionalities in his soul. और ये जो चार स्तर जो हमने देखे, ये जो चार चीजें जो जुड़ी हुई है, वो उसके ऊपर एक वस्त्र डला हुआ है, और ये जो है वो कार्य में आता है जब ये चार में से कोई भी एक चीज जो है, जब मनुष्य अपने आत्मा के अंदर इस चीजों का जब उसका उपयोग करता है या प्रयोग करता है. So whenever a human being thinks something, if he thinks a thought, the thought, if it's a good thought, his full body will be filled with a purity and goodness. If he's thinking a negative thought or a bad thought, his body gets filled with the poisons and the toxicity of sin. और जब जो है कोई अपनी सोच में अगर अच्छी सोच को रखता है या अच्छी बातों को सोचता है, तो उसका पूरा जो शरीर है वो अच्छी चीजों को लेता है, अच्छी बातों को जो है वो लेता है, और उसका जो शरीर जो है वो उस अच्छे कार्यों को भी करता है. और अगर कोई अपनी सोच को जो है वो गलत रखता है या नकारात्मक बातों से भरे रखता है, या गलत सोच अगर अपने विचारों में अपने दिमाग में रखता है, तो पूरा शरीर जो है वो इसी प्रकार कार्य करता है, और वो जो शरीर जो है फिर एक पाप की ओर जो है वो बढ़ता है. You know, it was the same in the beginning in the book of Genesis when God was alone and he wanted to create all of creation. और हम देखते हैं पुराने करार में जहाँ पे जो पाप को लेकर हम देखते हैं कि जहाँ पे हम शुरुआत की जब हम बात करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो अकेला था, और उसको जो है एक पूरी जो एक संसार की जो है वो रचना कर रहा था, या रचना करनी थी उसको संसार की. In the innermost being of God, in the heart of God, his divine will said, let us create something. And that creation was out of love. और परमेश्वर के हृदय की गहराई की जो इच्छा थी, परमेश्वर में के हृदय की जो गहराई की जो बात थी, तो उसको जो है एक संसार की जो है उसको रचना करनी थी. And then that divine will of the Father in his heart, God used the wisdom, understanding, and the knowledge in his if I can call it brain, in his mind to create everything. और जो ये अलौकिक इच्छा जो पिता की थी संसार को रचने की, ये अलौकिक इच्छा जो उसके गहरे हृदय की जो एक इच्छा थी, वो पिता परमेश्वर ने जो है वो अपने दिमाग में जो है उस इच्छा को जो है वो अपने दिमाग में उस सोच को जो है परमेश्वर अपने दिमाग में लाया. So just as God put together a language inside his mind and created words in his mind and then spoke it, and everything became into creation. And after speaking it, in chapter 2 of Genesis, he formed everything with his being. और जैसे ये सारी बातों को इकट्ठा करके, हर भाषा हर शब्दों को इकट्ठा करके परमेश्वर ने जब वो बातों को, उन अलग अलग भाषाओं को जब एक करके वो जब शब्दों में लाया, उन शब्दों को वो अपने मुंह से परमेश्वर ने जो है वो बातों का उपचार किया अपने मुंह से. और वो बातों के द्वारा हम देखते हैं कि उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि उसने जो है वो पूरी सृष्टि की रचना की. So the process of God willing something out of love and compassion, with his wisdom and understanding, creating something, then speaking creation, and then forming everything with his hands is the process and the image that you and me are made in, because we are made in the image of God. और यहाँ पे हम परमेश्वर के अंदर भी इन बातों को देखते हैं कि उनके हृदय में एक अलौकिक एक उनकी एक इच्छा थी. हृदय पूरी
हृदय की गहराई में इच्छा थी, उनकी दया और उनकी दीनता के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा उनकी एक इच्छा थी। वो इच्छा को जो है उन्होंने अपनी सोच समझ से जो है वो अपने दिमाग में उन बातों को लाया परमेश्वर, और फिर वो सोच के द्वारा, वो बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने उन शब्दों को जो है वो अपने मुंह से उन शब्दों को उच्चार किया, और हम देखते हैं कि उसने हाथों के द्वारा पूरे संसार की रचना की। So it is the same way that we function the same way God functioned in the book of Genesis. So we have to be very careful in our in having purity of heart, in cleanliness of mind, in the words that we speak, and the cleanness of our hands, because this is the image of God that we are made in. और जैसे हमने देखा, जैसे पुराने करार में परमेश्वर के लिए देखा कि परमेश्वर ने भी ये सारी 4 बातें जो है वो परमेश्वर से भी हमने जोड़कर इन बातों को देखा। वैसे ही कार्य हमें जो है वो हमारे जीवन में भी रखने हैं। जैसे हमारे हृदय में हमें शुद्धता रखनी है, हमारी जो सोच है वो साफ-सुथरी सोच होनी चाहिए, और वही हमारा जो है वो शब्दों का जो है वो हमारे मुँह से उच्चार होना चाहिए, और हाथों के काम जो है वो उसके द्वारा जो है वो साफ काम होने चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम परमेश्वर की एक आकृति में, हम परमेश्वर की एक आकृति हमारे जीवन में देख सकते हैं। Now, in Matthew chapter 5, verse 4, Jesus says, "Blessed are those who mourn, who cry, for they shall be comforted." और हम मत्ती के 5वें अध्याय और 4थे वचन में देखते हैं, धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। Why would someone cry? Why would someone mourn and ask for comfort? क्यों कोई रोएगा और शोक बनाएगा और शांति पाएगा और शांति मांगेगा? If you look at the world around you, everyone is happy, everyone is rich, everyone is eating, drinking, sleeping, having a good time, everyone is earning money, and everyone's happy. This world does not need God. और हम अगर हमारे आजू-बाजू अगर हम संसार में देख रहे हैं, तो लोग खुश हैं, लोग खा पी रहे हैं, लोग मौज-मस्ती कर रहे हैं, लोग अपने-अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। उन लोग अ, अपने रूप से, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जहाँ पे वो लोग, हम देखते हैं कि सब लोग खुश हैं, क्योंकि उन लोग को जो है वो परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। But you and me are here today to hear the word of God because we know that we desire and we require God in our lives. और आप और हम यहाँ पर बैठे हैं इस समय जो है, ये बातें जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो उत्सुकता है, हमें परमेश्वर को जानने की हमारे अंदर जो है वो एक इच्छा है हमारी ज़िंदगी के लिए। Why is there a difference between the people in the world and the people who we are, who always are crying and worshiping and praying to God, but the world does not do this? और क्यों हम हमारे अंदर जो है वो अलग बात है, संसार के लोगों से हम अलग है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर के आगे जो है हम एक पुकार लगाते हैं, हम जो है वो संसार से अलग लोग क्यों है? Because when God created humanity, He created us to cleave to Him, to attach ourselves to Him, so that when we attach ourselves to Him, we will be complete. और क्योंकि इसका कारण यही है, जब हमें परमेश्वर ने जो है अपनी दया से जब हमें रचा, परमेश्वर चाहता है कि हम जो है वो उसके साथ जो है वो जुड़े रहे, उसके उसके अधीनता में बने, उससे जुड़े रहे, ताकि जो है वो पूरी तरह से हम जो है वो संपूर्ण बन जाए। But the people of this world have climbed their own mountain and have filled their lives with vanity and wealth and their own gods and their own goddesses. और अगर हम संसार के लोगों को देखते हैं, तो उन्होंने जो है वो एक खुद का ही पहाड़ उन्होंने बनाया है, खुद के ही पहाड़ पे वो चढ़ रहे हैं, जहाँ पे वो पैसों को और अपने ही चीजों को देखते हैं। उन्होंने एक अपनी ही रचना बनाकर रखी है, अपने ही जो है वो परमेश्वर जो है उन्होंने देवी देवताओं को बनाकर रखा है। But you and me cry, we mourn, and we are crying and we are worshiping and we are praying to God.
And in his presence, we are completed and we are comforted because he's a loving God. और हम और आप जो है वो परमेश्वर के आगे जो है वो रोते हैं, शोक बनाते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो हमें संपूर्णता देता है, जो हमें प्यार करता है, जो हमें परिपूर्ण करता है। To be in the presence of God and to worship him and to pray to him, it's an act of purification of the heart. Your heart is getting purified all the time. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तब उस समय जो है वो हमारा हृदय जो है वो लगातार जो है वो शुद्धिकरण पा रहा होता है, हमारा हृदय जो है वो पूरी तरह से जो है वो शुद्ध होता रहता है। And the reason we mourn and we cry is because we have a spiritual understanding that we need to be complete and we need to cleave to God. So therefore now our soul cries out, wanting for that comfort, and God comforts us. और हम इसीलिए रोते हैं और शोक बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही जो है वो हमें पूरी रीति से जो है वो परिपूर्ण कर सकता है, और हमारा परमेश्वर ही जो है वो हमें पूरी तरह से जो है वो आराम दे सकता है। Then in verse 5 it says, "Blessed are the humble, for they shall inherit the earth." The inheritance of theirs will be the earth. और हम 5वें वचन में देखते हैं, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। The earth will respond to the kindness and the humility of a person who knows God. और पृथ्वी जो है वो नम्र लोगों को पहचानेगी, वो नम्रता को जानेगी। जो परमेश्वर में नम्रता है, उसको पृथ्वी जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो जानेगी। And the earth will give its fullness to that person. और पृथ्वी जो है वो अपनी पूरी तरह से जितनी भी उसकी जो बहुतायकता है, जो भी पृथ्वी की जो चीजें है, वो पृथ्वी अपने आप को पूरी तरह से उस व्यक्ति को दे देगी। And friends, if we are not in the process of ascending God's mountain and emptying ourselves and purifying our hearts with prayer before him, we are not going to be able to mourn and to cry for comfort and for righteousness that God is wanting to give us in his love. और हम जैसे देखते हैं कि हम जब जो है वो उसके पहाड़ की ओर जो है ऊपर चढ़ते हैं, अगर हम जो है वो अपने आपको जो है अगर हम खाली नहीं करते, तो हम जो है वो उस प्रकार आई एम सॉरी बट हम जो है वो उस प्रकार से जो है वो शोक नहीं बना पाएंगे, ऐसे रो नहीं पाएंगे परमेश्वर के आगे। Is it so? Because your voice was breaking again. I'm so sorry. Okay. Then in verse 6 it says, "Blessed are they who hunger and thirst for righteousness." और छठा वचन कहता है, धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। Because these people know the difference of ascending the mountain of God rather than ascending the mountains of this world. क्योंकि ऐसे लोग जो है वो इस बात की गहराई को समझते हैं कि परमेश्वर के पहाड़ पे चढ़ना क्या है। परमेश्वर के पहाड़ पे चढ़ना अच्छा है, ना कि संसार के पहाड़ पे। Each step you take ascending the mountain of God, you are becoming more and more purified and more humble, and your soul is repenting and you're weeping and you're crying. और जैसे हम इस परमेश्वर की पहाड़ पे जैसे हम चढ़ते जाते हैं, जैसे हम ऊपर होते जाते हैं, वैसे हमारा जो है हृदय वो शुद्ध होता जाता है, हमारे अंदर शुद्धता आती रहती है, और हम जो है लगातार जो है वो हम पश्चाताप कर सकते हैं। हमारा हृदय जो है वो पश्चाताप करता है। Verse 7 says, "Blessed are those who are merciful, for they shall get mercy, they shall obtain mercy." और 7वां वचन कहता है, धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उनके ऊपर दया की जाएगी। Because when you understand that all sin is the result of bad relationships, you will only be merciful to everybody around you. क्योंकि जब हम समझ जाएंगे कि जो पाप है वो एक खराब रिश्ते के
वजह से जब होता है, जब इस बात को हम समझ जाएंगे तो हम जो है वो एक दयावान, हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं उन सभी के आगे जो है हम एक दयावान बन जाएंगे। We will practice mercy and kindness because we understand that I need to love my brother and my sister around me. और हम जो है जब इस बात को समझ जाएंगे, हम जब दया दिखाने लग जाएंगे, इस बात को जब हम पूरी तरह से समझ जाएंगे तो हमारे आसपास के जो भाई बहन है हम उनसे प्रेम करने लगेंगे। I hope you all are understanding today's message because it's very beautiful. It's a very deeper level of understanding the words of our Lord Jesus. और हम आशा करते हैं कि आप आज का ये जो वचन है वो समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक प्यारा वचन है और एक गहराई का एक वचन है, जो हम यीशु मसीह को आज एक गहराई के रूप से हम जान रहे हैं। Now read verse 8. It says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." और हम 8वां वचन देखते हैं, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। Remember what we read in Psalms 24? Only a person who's clean of hands and pure in heart will be able to ascend the mountain of God. और हमें याद है, जैसे हमने भजन संहिता 24 के अध्याय में पढ़ा कि जिसके जो हाथ जो है वो जिसके साफ है और हृदय शुद्ध है, सिर्फ वही जो है वो परमेश्वर के पहाड़ पे चढ़ सकेगा। So when you have practiced, you have purified your heart in the presence of the God and His Holy Spirit, and your heart has become pure, your full body becomes sanctified and pure. और जब आप ये बात को अगर आप समझ लोगे और अगर परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारा जो है वो हृदय जब पूरी तरह से अगर हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा, अगर हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो हमारी जो पूरी बॉडी के जो फंक्शन, जो कार्य है वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। And then because of that, you will be able to see God. In other words, it's saying the only place you will be able to see God is in your heart. और इसी एक कारण से हम जो है वो परमेश्वर को देख पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि एक ही रास्ता है जहाँ पे हम परमेश्वर को देख पाएंगे, वो हमारे हृदय के द्वारा। In your heart dwells the fullness of God if you purify it. और आपके हृदय में ही परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से जो समा जाएगा, अगर आप अपने हृदय को जो है वो पूरी तरह से शुद्ध कर दोगे। The reason God does not show us who He is because our sinful nature will always misunderstand what we see. एक ही कारण है कि हम परमेश्वर को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा जो एक पाप भरा जो हमारा स्वभाव है वो हमें जो है वो परमेश्वर को जो देखने की या समझने की शक्ति को जो है वो। Hello? Hello, Dimple? Dimple? She's gone over? I don't know. No, I'm Riga, actually sorry, it was a poor connection. Okay. Please, sorry. Yeah. So it's very important what we're learning right now. The heart is a place where God needs to dwell, and that is where you will be able to see Him. और हृदय ऐसी जगह है जहाँ पे परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर वास करता है और हम जो है वो परमेश्वर को देख सकते हैं। It is only when you have a pure heart you will be able to see God in His purity and His essence. Otherwise, you will misunderstand what you see. और अगर हमारे हाथ में अगर हृदय में जो है अगर शुद्ध है, हमारा हृदय अगर पूरी तरह से शुद्ध है, तो ही जो है वो हम परमेश्वर को देख पाएंगे और परमेश्वर को समझ पाएंगे। वरना अगर हमारे हृदय में जो है वो अगर शुद्ध, हमारे हृदय में अगर शुद्धिकरण नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हम जो है वो परमेश्वर को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। And when you try to look and search for God with impurity in your heart, then you will indulge in secret sins of idolatry and idol worship.
और अगर हमारे हृदय में जो है वो अगर शुद्धिकरण नहीं, अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है और अगर हम फिर अगर परमेश्वर को देखने की अगर कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो है फिर उसके बाद जो है हम एक मूर्ति में या मूर्ति पूजा में चले जाएंगे। Because you'll be creating idols and idol worship in your brains and in your understanding and in your wisdom. क्योंकि हम जो है फिर वो मूर्ति पूजा को जो है वो कहीं ना कहीं हम समझने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारी समझ में हम उसकी आराधना करने लगते हैं। You will start believing that God is like a man and God has God looks like an animal and he like an idol and he's like this and like that, whereas God has got no kind of form or intelligence of this world. He's got no essence of this world inside of him. और फिर हम ये समझने लगते हैं कि परमेश्वर जो है वो किसी मनुष्य जैसा दिखता है या किसी जानवर जैसा दिखता है, क्या वो किसी रूप या किसी प्रकार में है, फिर हमारी जो समझ है वो उस प्रकार की हो जाती है। पर परमेश्वर की जो है वो किसी भी रूप में, परमेश्वर जो है ये इस संसार से जो मेल नहीं खाता है, वो पूरी तरह से जो है वो अलग है। Whenever Jesus says that when you have seen me, you have seen the Father, he was trying to tell us, if you see the way I function on this earth in purity, it's the same way my Father functions in the heaven. और जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मुझको देखते हो तो अब मेरे द्वारा जो है वो मेरे स्वर्गीय पिता को तुम देखते हो, तो यहाँ पे यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि वो जैसे मैं जिस शुद्धता के साथ कार्य कर रहा हूँ इस धरती पे, वैसे ही शुद्धता के साथ जो है मेरा पिता, जो है मेरा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में जो है वही कार्य कर रहा है। So if you have seen me, you have seen the Father. Because you cannot see the Father because your hearts are impure. अगर तुम, यीशु कहता है अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने मेरे पिता को देखा है, और तुम जो है वो परमेश्वर को नहीं देख सकते हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में जो है वो अशुद्धता है। So the theme for today, friends, is about striving and getting a pure heart, because that is the middle point of your existence. That is the most important point of your existence. और आज का जो ये हमारी जो शिक्षा है वो एक केंद्र रूप में एक एक बिंदु है हमारे जीवन के लिए कि हमारे हृदय का जो है वो शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। Now go back to Psalms 24. हम भजन संहिता का 24वां अध्याय देखेंगे And we will read verse 5 and verse 6. और हम 5वां और 6वां वचन देखेंगे। वो युवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वह तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। If you do not swear false with your mouth, if you have a pure heart and your hands are clean and you use a pure language and pure words, you will be able to see God where? In your heart. And then your life would be purified. You will be able to ascend the Mount of God. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे मुंह से जो है वो गलत चीजों का जो है वो उपचार नहीं होगा, हमारे हाथ जो है वो पूरी तरह से साफ है, हमारी सोच जो है वो पूरी तरह से जो है वो अच्छी, वो शुद्ध सोच है, तो हमारे हृदय में जो है वो हम परमेश्वर को जो है वो देख सकेंगे और वो परमेश्वर की पहाड़ पे जो है वो हम चढ़ पाएंगे। That is why in verse 6 it says, this is the generation that seeks after him and seeks the face of God. और इसीलिए 6वां जो वचन कहता है, ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वो तेरे दर्शन के खोजी और वंशी, याकूब के वंशी है। And this is exactly what Jesus is saying in chapter 5 of Matthew. और यही बात है कि यीशु मसीह ने जो है वो मत्ती के 5वें किताब में कही है।
This is the generation. You and me are the generation that seeks the purity, to ascend the mountain, to have a pure heart, and to seek God. और आप और हम, हमारी ये जो वंश है, ये हमारा ये जो वंश है, वो जो है वो अपने हृदय की शुद्धता और शुद्धिकरण के द्वारा जो है वो परमेश्वर को देख पाएगा और परमेश्वर के जो है वो पहाड़ को चढ़ेगा. Now read verse 7. Psalms 22 verse 7. ओके. हम जो है वो भजन संहिता 24वां अध्याय 7वां वचन देखते हैं. हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. It says, when you have reached this level, then lift up your head, lift up your wisdom, lift up your understanding, your gates of understanding, and open the doors so the King of glory can come in and reside inside your heart. और ये वचन कहता है कि जब तुम उस स्तर पे पहुंच जाओगे तो तुम अपनी जो एक सोचने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से जो अगर अब ये चीजों को अगर हम अपना लेते हैं और ये पूरी बातों को अपना लेते हैं तो परमेश्वर जो है वो फिर हमारे हृदय में जो है वो आकर वास करेगा. Lift up your heads, lift up your gates, and let the King of glory come in, because you would have achieved a pure heart and you ascended the mountain of the Lord. जैसे वचन कहता है कि हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हमें हमारा जो सिर है वो ऊंचा करना है, और हे सनातन के द्वारों के ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. तो परमेश्वर जो है वो उस द्वार के द्वारा जो है वो प्रवेश करेगा. Praise God. We're not going to go any further because I think we'll extend our time for today for 1 hour. But we've just done about 4-5 verses of Matthew 5. And the next week we will continue the other chapter, other verses in the chapter. I hope you all have been blessed. I hope you all have been able to absorb the depth and the richness what our Lord Jesus is talking to them. और हम जो है वो अब आज जो है वो हमारा समय हो चुका है. हमने जो है वो कुछ बातों को मत्ती के 5वें अध्याय से देखे और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की जो महिमा है, जो गहराई है, उन बातों को आज हमने जो सीखा है और समझा है. और आगे जो चीज, आगे जो बातें हैं वो हम जो है वो अगले सप्ताह करेंगे. So I hope you all join us next time, and please get in touch with us. I hope you all will be able to meditate and to search for all the wonderful things we've learned today. और हम आशा करते हैं कि आप जो है वो हमारे साथ अगले हफ्ते भी जुड़ोगे और जो बातें जो हम आज जो हमने सीखी है, आप उन बातों पे जो है वो मनन करोगे और अगले सप्ताह जुड़कर हम इन बातों को और गहराई से देखेंगे. Wonderful. Praise God. Good day. Have a lovely day. आपका दिन शुभ हो.